حمد ہے اس کے لیے جس نے قلزم لا سے گوہر مکان پیدا کیا۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں، جو ناانصافی کرتے ہیں، جو استحصال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم بلوچستان کے مقدس ادارے کے سامنے ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہم نے یہاں دھرنا دیا ہوا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، پاکستان کی تاریخ 70 سال کی تاریخ یہ بحرانوں کی تاریخ ہے۔ بحران در بحران سے دوچار یہ ملک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بحران کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 سال سے اس ملک پر وہ لوگ حکمران ہیں، وہ حکمران ہیں جن کے آبا و اجداد مغلوں کے غلام رہے، جن کے آبا و اجداد افغانوں کے غلام رہے، جن کے آبا و اجداد سکھوں کے غلام رہے، انگریزوں کے غلام رہے۔ اس ملک پر ان لوگوں کی حاکمیت ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ جمہوریت، کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اس ملک پر ان لوگوں کی حکومت ہے جو صرف اور صرف امریکہ کو جواب دے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ برملا کہتا ہوں، یہ پاکستان آزاد نہیں ہے، یہ امریکہ کے غلام ہیں۔ آج بھی پاکستان کی فوج اور اس کی اسٹیبلشمنٹ صرف امریکہ کو جواب دے ہے۔ اس کا کوئی، آپ اندازہ لگائیں کہ بلوچستان میں 70 سال سے جنگی ویژن کے ساتھ مسائل حل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہاں قتل عام کیا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ غائب ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ یہاں سے غائب کیے گئے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ہزاروں لوگ قتل ہوئے آپ کے سامنے۔ یہاں پر مسلسل نامعلوم کی حکومت ہے، یہاں نامعلوم حکومت کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے بے گناہ لوگوں کو، بھائی ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ ملک ہے، اگر یہ ریاست ہے، اگر یہ یہاں آئین ہے، قانون ہے، تو جرم جس نے کیا ہے اس کو گرفتار کرو، کھلی عدالت پہ اس پہ مقدمہ چلاؤ، اس کو سزا دو۔ اس کے لیے کوئی آپ اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہزاروں لوگ بلوچستان سے غائب کیے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسنگ پرسن بازیاب ہو رہا ہے، ایک نام نہاد یہاں عدالتی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ بھائی یہ کس نے اغوا کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے، پورے پاکستان کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، یہ ہمارے خفیہ ادارے ان لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، ان کو ظلم کر رہے ہیں۔ ان پر ہمارے 3000 سے زائد لوگ قتل ہوئے، 3000 لوگ۔ اس دن مجھے بڑی ہنسی آئی، کہتے ہیں اسپینی روڈ کے دھماکے کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ وہ شرم کرو، وہ بے غیرت، شرم کرو۔ کون سا مقدمہ؟ آج تک 3000 لوگ صرف ہزارہ برادری کے مارے گئے ہیں، ہزارہ قوم کے مارے گئے۔ آپ بتائیں ایک قاتل پکڑا گیا ہے؟ ایک شخص کو پکڑا ہے کسی نے؟ نہیں، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سن لو، ظلم اور ریاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا، یہ آپ کو بتا دوں میں۔ ظلم کے ساتھ یہ ریاست نہیں چل سکتا۔ آج ہر مقدس ادارے میں آپ مسجد میں جائیں، وہاں پولیس والے کھڑے ہیں، ایف سی والے کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مسجد بھی محفوظ نہیں، امام بارگاہ بھی محفوظ نہیں، تعلیمی ادارے محفوظ نہیں۔ اس سے بڑھ کر شرمناک بات اور ہو سکتی ہے؟ آپ کے تعلیمی ادارے محفوظ نہیں ہیں۔ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں یہاں پڑھتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ یہاں تعلیم کا دروازہ ہماری ماں اور بہنوں پر بند ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں تعلیم حاصل نہ کریں۔
तो मैं ये बरमला कहता हूँ कि ये तौर तरीक़े अब नहीं चल सकते। इंसाफ के साथ अगर रहना है तो ये मुल्क कायम रहेगा। अगर हमें पाकिस्तानी समझते हो तो फिर जुल्म बंद करना होगा। अगर जुल्म करोगे तो खुदा की कसम हम फिर जुल्म के सामने झुकेंगे नहीं। हम जुल्म के खिलाफ कयाम करेंगे, चाहे सर रहे या न रहे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। तो मेरे बहनों, हम आपके साथ हैं, हम जालिमों के खिलाफ हैं। हमारे जो बहनें तालीम हासिल करने के लिए यहाँ इस उम्मीद से आती हैं कि हम तालीम हासिल करें, हम उनके साथ हैं। हम जालिम की कलाई मरोड़ देंगे, हम जालिम के हाथ तोड़ देंगे। कुछ भी हो जाए, सर रहे न रहे, लेकिन जुल्म के खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे। हम आपके साथ हैं, आपके साथ इंशाल्लाह कोई जुल्म नहीं कर सकता। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नौजवानों को गायब किया गया, हजारों लोगों को कत्ल किया गया, और अब हमारे नामूस पे, हमारी इज्जत पे, हमारी माँओं और बहनों पर हमला किया जा रहा है। ये सुन लो बेगैरतो, हम बलूचिस्तान की सरजमीन पर किसी का ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे नामूस की तरफ देखे, कोई हमारी गैरत को चैलेंज करे। इंशाल्लाह इसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी को गलत नज़र डालने की इजाज़त नहीं देंगे। हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इनको वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि अपने तौर तरीक़े बंद करो, जो लोग मिसिंग है उनको बाजियाब करो, और ये जो नाम नहाद दहशतगर्दी की जंगी सियासत है इसको ख़त्म करो। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात के साथ? हाथ उठाएं। नाम नहाद दहशतगर्दी की जंग, इसको ख़त्म करो, ये कत्लेआम बंद करो, और ये मिसिंग पर्सन जितने भी हैं इनको फौरन बाजियाब करो, इनको बाजियाब करो। और हमारी माँओं, बहनों और बेटियों की तरफ जो साजिश तुमने किया है, इसके लिए माफ़ी मांगो, और आइंदा के लिए तालीमी दरसगाहों से ये जो फोर्सेस वगैरह इनको हटाओ। हमारे लोग ये फोर्सेस को हटाओ। आप अंदाज़ा लगाएं ये मुल्क कैसे तरक्की करे, कैसे ये निजात हासिल करे। 60-70 हज़ार लोगों को राइफल गले में दे के गैर पैदावारी, यानी कुछ भी नहीं कर रहे, वो राइफल लेके खड़े हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। आज ये मुल्क $1 खरब कर्जदार है, और ये देखें हमारे पर मुसल्लत किया है इनको। ये सब कुछ मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, ये सब कुछ नामालूम उर्फ़ मालूम कर रहा है, नामालूम उर्फ़ मालूम कर रहा है। चाहे जो भी जुल्म है, जुल्म की जो भी तरीक़ेकार है वो उस पर ये अमल पैरा है। ये हमारे और आपके हुकूक देना नहीं चाहते, इसलिए ये जुल्म करके हमें हमारे हुकूक से दस्तबरदार कराने की साजिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया ताहिर खान हज़ारा साहब। 3 नारे होंगे, भरपूर जवाब आप देंगे। पहले सुने नारे। मैं कहूँगा जीना होगा, मरना होगा, आप लोग कहोगे डरना होगा, डरना होगा। जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। अब मैं कहूँगा डरना होगा, डरना होगा, आपने कहना है इज्जत के लिए मरना होगा। डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। मैं कहूँगा दरिंदे हटाओ, आप कहेंगे तालीम बचाओ। दरिंदे हटाओ, दरिंदे हटाओ,
बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा मोहतरम मलिक अब्दुर्रहमान ख्वाजा खेल साहब से ख्वाहिश करता हूँ क्या कि अपना मुख्तसरन ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायदीन, तलबा तंजीम, ट्रेड यूनियंस और गैरतमंद बलूचिस्तानियों, आज का ये धरना बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से उन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सरजमीन बलूचिस्तान पे एक गैर बलूचिस्तानी डॉक्टर शाजिया के लिए हमने अपने सर कटाए। हम अपने बच्चियों के लिए क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। ये जो साजिशें हमारे तालीमी अदारों को बंद करने के लिए, हमारे बेटे और बेटियों को खौफज़दा करने के लिए कि वो तालीम हासिल न कर सके, हम उन साजिशों से बाखबर हैं। दोस्तों, मैं आज इस धरने और इस जलसे के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि उन दरिंदों को, वाइस चांसलर उसके अवारियों को अगर उनके जुर्म की पादाश में बेनकाब करके उनको कैफिर किरदार तक नहीं पहुँचाया तो हम बैसियत बलूचिस्तानी अपनी रिवायात के मुताबिक उनको इसी चौक पे संसार करेंगे। दोस्तों, अगर आज या हमारे सामने दर्जनों ताबूत होते नौजवानों के, हमें अरमान नहीं था। दोस्तों, अगर हमारे नौजवानों के सर काट के नेज़ों पे हमारे सामने पेश करते हमें कोई अरमान नहीं था। लेकिन आज जो वारदात इन्होंने हमारी नंग के ऊपर किया है, हमारी इज्तिमाई वकार के ऊपर किया है, ये शुरुआत उन्होंने किया है। उन्हें बलूचिस्तान की रिवायात से वाकियत नहीं है, वो तारीख पढ़ लेते तो वो ये कदम नहीं उठाते। दोस्तों, जब भी बलूचिस्तान पे कोई आंच आई है तो यही तिरंगा झंडा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने नंग नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज बन के आया है। लेकिन आज हम सियासत करने नहीं आए हैं। आज पूरा बलूचिस्तान, पूरी सोसाइटी सरापाए एहतजाज है। लेकिन अफसोस के इक़्तिदार में बैठे लोगों के कानों तक ग्रीन तक नहीं चूमती। मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नर साहब, आप भी इसी धरती के फर्जिंद हैं, आप भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको भी रिवायात से, इन रस्म रिवाज से वाकफियत है। लेकिन इस सरदमोरी पे आपने आवाम को मजबूर किया है, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बेटों को हमें वहाँ तक मत पहुँचाओ कि हमारी वापसी ना हो। दोस्तों, वक्त कम है, हमारे मुकर्री बहुत है। आप सब लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मोहतरम। दोबारा वही नारे होंगे, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, आपने कहना है इज्जत के लिए मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। अब मैं मरकजी कमेटी के मेंबर, नौशकी के रहनुमा मीर खुर्शीद जमालुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि आके अपना मुख्तसरन ख्यालात का इज़हार करें। थोड़ा नीचे कर, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अहले बलूचिस्तान को सुर्ख सलाम, और ख़ास कर आज यौम सियाह और ये जो मातम मना रहे हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों को गोश गुजार दूँ। हम तो अपनी नंगो नामूस पे सर देने वाले हैं, लेकिन जब मेरा नवाब अकबर खान बुगटी एक डॉक्टर शाजिया के लिए अपना तख्त, अपना कौम, अपना दौलत
अपना सब कुछ एक पंजाबी औरत के लिए वक्फ कर दी, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में बलोचों के पास और कोई सबूत ही नहीं है। मैं सलाम करता हूँ उन शोदा को। ज़िंदगी हर एक को प्यारी होती है, लेकिन जो प्यार जो हमें सिखाया गया है, चाहे दरसगाहों में या वालिदैन की तरफ से या दोस्तों की तरफ से, ये यूनिवर्सिटी ज़बरदस्ती 70 में जब मुझे याद है, ये माइनिंग कॉलेज था, यहाँ पे सारे बंगाली पढ़े हुए थे, टेक्निकल जितने भी लोग थे, लेकिन यहाँ पे ये बिल्डिंग ज़बरदस्ती हम लोगों ने कब्जा कर ली। उस वक़्त मेरे कायद, मेरे लीडर गौस बीजंजो साहब जब गवर्नर थे, एक आला पाए तालीम उस्ताद रहबर और रहनुमा प्रोफेसर कर्रार साहब को जब लेके आए, उनकी बेटी उस वक़्त हमारी लेक्चरर भी थी थायरा, लेकिन हमें अपने माँ और बहनों की इज्जत है, इस वजह से उनकी इज्जत भी हमने रखी और लाज भी रखी यूनिवर्सिटी की। लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी देख के खुदा कसम याद आ रहा है कि लानत भेजो इस यूनिवर्सिटी पे, लानत भेजो इस हमले पे, और इस वाइस चांसलर और इसका पूरा जो गिरोह है, ये मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के चाहे जो भी औरत हो, उसमें हज़ारा हो, पठान हो, बलूच हो या जो भी हो, सिंधी हो, सब हमारे लिए मोहतरम, क्योंकि हम लोग बलूच इसी नंगो नामूस के लिए अपनी ज़िंदगी, अपना वक़ार सब कुछ हम लोग दाव पे लगा लेते हैं, लेकिन अपने नंगो नामूस में किसी को हाथ डालने नहीं देंगे। जहाँ तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का ताल्लुक है, इसको आप लोग मामूली ख़ुसूसन साथियों से मेरा गुजारिश है कि इसको यहाँ पे वक्ती तौर पे आप कुछ न ले। इनमें ऐसे नौजवान भी है, अगर काश आज वीसी अंदर होता था, खुदा की कसम इस वक्त हम लोग अपना जान दे के उसको बाहर निकालते थे। यहाँ पे इंक्वायरी में कुछ होता ही नहीं है, किससे हम लोग करें। अभी ताहिर हज़ारा साहब ने जो बात की, उनकी बातों से 100% में मुत्तफिक हूँ, लेकिन जहाँ तक बात आती है गैरत पे, तो मेरे ख्याल में ये अदारा ऐसा अदारा लग रहा है, इस पे मेरे बच्चों, माहों और बेटियों को इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में डर ही लगता है। हम लोग बमुश्किल पहले कहते थे कि भाई बलूच औरतें पढ़ते नहीं हैं, जब हम लोग अपना भेड़ बकरी सब कुछ बेच के कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी की सतह तक जब हम लोग लेके आते थे, लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी का हाल है देखा, हमारे जितने भी कौमियत के लोग हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। आओ आज यहाँ पे डॉक्टर जानजेब और वली काकड़ हैत कर ले कि अगर करना है तो इस तरह करना है, सिर्फ एक रैली और एक धरना से मसाइल हल नहीं होगा। ऐसे वाइस चांसलर को बरसरहम सिंगसार होना चाहिए। उसको वो इतना ही बेखबर था, इतना ही बेखबर था कि मेरे माँ और बहन और तकरीबन साल से 6 महीने बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैंप लगाई, गुरकरताली कैंप, लेकिन वहाँ पे किसी ने ध्यान ही न दी। आखिर हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँच गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, और भी दोस्त ज़्यादा है, बड़ी मेहरबानी आपकी, और इंशाल्लाह यही उम्मीद रखूँगा अपने सरखेलों से कि एक अच्छा प्रोग्राम वसत देंगे ताकि इनका सरको भी हो। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। आज हमने बैठना है अपनी बहनों